اور ناظرین، لاہور میں کورونا وائرس خطرناک حد تک پھیل چکا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کو ارسال کی گئی سمری میں انکشاف ہوا کہ کوئی بھی رہائشی علاقہ اور قصبہ کورونا وائرس سے محفوظ نہیں۔ ہاٹ سپاٹ، رہائشی اور کام کی جگہوں سے کورونا وائرس کے سیمپلز لیے گئے۔ سیمپلز میں 5.18 اور سمارٹ سیمپلنگ میں 6.1% ٹیسٹ مثبت آ چکے ہیں۔ سمری میں کورونا وائرس کے اصل مریضوں کا اندازہ 6,70,000 لگایا گیا۔ محکمہ صحت کے تکنیکی ورکنگ گروپ نے لاہور میں 4 ہفتے کے مکمل لاک ڈاؤن کی سفارش بھی کر دی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ سمری کے حوالے سے اعداد و شمار اب سامنے آ چکے ہیں اور محکمہ صحت کے تکنیکی ورکنگ گروپ کی جانب سے لاہور میں 4 ہفتے کے مکمل لاک ڈاؤن کی سفارش کر دی گئی اور یہ بھی کہا گیا کہ لاہور کا کوئی علاقہ بھی اس وبا سے محفوظ نہیں رہا۔ کورونا وائرس لاہور میں خطرناک حد تک پھیل چکا ہے اور کوئی بھی رہائشی علاقہ اور قصبہ کورونا وائرس سے محفوظ نہیں۔ سمری میں یہ انکشاف کیا گیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ ہاٹ سپاٹ، رہائشی علاقے اور کام کی جگہوں سے کورونا وائرس کے سیمپلز اکٹھے کیے گئے اور سیمپلز کے مطابق 5.18 اور سمارٹ سیمپلنگ میں 6.1% ٹیسٹ مثبت آئے ہیں۔ سمری میں کورونا وائرس کے اصل مریضوں کا اندازہ 6,70,000 لگایا گیا۔ اس کے علاوہ محکمہ صحت کے تکنیکی ورکنگ گروپ کی جانب سے لاہور میں 4 ہفتے کے مکمل لاک ڈاؤن کی سفارش بھی سامنے آ چکی ہے اور یہ بتایا گیا کہ لاہور میں کورونا وائرس خطرناک حد تک پھیل چکا ہے اور کوئی بھی علاقہ کورونا وائرس سے محفوظ نہیں ہے۔ اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ بتائیے گا، لاہور میں یہ ایپیڈیمک بہت زیادہ پھیل چکا ہے تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے اب کیا کرنا چاہیے؟ آپ کی سفارشات کیا ہوں گی؟ بہت شکریہ جی۔ ظاہر ہے کہ یہ حقیقت ہے کہ واقعہ ہی بہت پھیل چکا ہے اور یہ گھر گھر کی چیز بن چکا ہے، ہر دفتر میں پھیل چکا ہے، ہر جگہ پہ پھیل چکا ہے انفارچونیٹلی۔ اور یہ اس چیز کے ثمرات ہیں جو ہم نے بلیٹنٹ وائلیشن اور دجیاں اڑائیں اس کی SOPs کی۔ عید سے پہلے شاپنگ میں ایک بچے کی جوتی خریدنے کے لیے ہم نے کئی جانے لے لی اور آئس کریم کھانے کے لیے بھی اسی طرح ہی ہوا، پکنک منانے کے لیے عید کے تو کوئی حرج نہیں تھا کہ ہم اپنا قربانی کرتے اور یہ زندگیاں بچا لیتے۔ بہرحال یہ تو ہو چکا۔ آگے جیسے میں سمجھ رہا ہوں کہ اس وقت ہمیں اپنی زندگی بھی جاری ساری رکھنی ہے لیکن مختلف طریقے سے۔ ہم نے ماسک کے بغیر کہیں نہیں نکلنا، کہیں انٹر نہیں ہونا اور کسی GNN کا چینل ہو، کوئی بھی ہو، انٹری گیٹ پہ چاہے وہ پرائم منسٹر صاحب ہوں، کوئی بھی ہو، ان کی انٹری بین ہونی چاہیے انلیس کہ وہ ماسک پہنتے ہیں۔ کسی کو تنخواہ نہیں ملنی چاہیے جب تک وہ ماسک پہن کے نہیں آتا۔ بینک کو انٹرٹین نہیں کرنا چاہیے۔ مجھے کسی اسٹوڈنٹس کو نہیں انٹرٹین کرنا چاہیے وائس چانسلر کے طور پہ جب تک ماسک وہ نہیں پہن کے آتا۔ تو ماسک کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے، ہینڈ واشنگ کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے اور اسی طرح اگر نہیں آپ ہاتھ دھو سکتے تو سینیٹائزیشن کے لیے اپنے پاس جیب میں رکھیں۔ اور اس کے بعد کیونکہ یہ آپ کی بھی زندگی کا سوال ہے، لوگوں کا آپ گھر لے جائیں گے وائرس تو آپ کی فیملی افیکٹ ہوگی اور یہی کچھ ہو رہا ہے۔ اور اسی طرح آپ کوشش کریں کہ کہیں بھی ہجوم اکٹھا نہ ہو، کم از کم ہم ایک دوسرے سے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آپ ساتھ ہی رہیے گا کیونکہ ظاہر جو حکومت پنجاب کا موقف ہے وہ بھی بہت ضروری ہے کہ واقعی ایسا ہے بھی یا نہیں۔ ترجمان پنجاب حکومت مسرت جمشید چیمہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم بات کرتے ہیں۔ مسرت صاحبہ، فرمائیے گا کہ یہ جو سمری ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ جو اصل مریض ہیں لاہور میں ان کا اندازہ ہے تقریباً 6 لاکھ سے 70,000 یعنی 6,70,000 کے قریب مریض ہیں، تو اس پر حکومت پنجاب کا موقف ہے کیا؟ یہ درست ہے یا آپ اس سمری کو نہیں مانتے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ بیسکلی دیکھیں، میں آپ سے 2-3 باتیں شیئر کروں گی کہ یہ کبھی بھی جب کنفرم کیسز کی بات آتی ہے تو وہ اندازوں پہ تو مبنی نہیں ہوتی۔ اس میں ایک سائنٹیفک طریقہ ہے کہ پیشنٹ وہی کورونا پازیٹیو ہو سکتا ہے جس کا ٹیسٹ ہوا ہو۔ ہم اندازے لگا کے یا ایک گیان کے تھرو تو نہیں بتا سکتے کہ آپ ہیں اور آپ نہیں ہیں۔ اور بھی امپورٹنٹ چیز ہے، آپ صرف ایک کامن سینس کی بات ہے، آپ اسٹیٹکس دیکھیں کہ پورے پاکستان میں اگر ٹیسٹ ہوئے ہیں 5 لاکھ کے لگ بھگ اور اگر پنجاب بھر میں ٹیسٹنگ ہوئی ہے کوئی 2.5 لاکھ کے لگ بھگ، تو لاہور خالی کے اندر 6,70,000 کیسے ہو گئے؟ اس کی رپورٹ کی ریالٹی یہ ہے کہ ہم نے ایک رینڈم ٹیسٹنگ کی تھی، سیمپلنگ کی تھی لاہور کے اندر، وہ ایک ہم نے ڈرائیو شروع کی تھی اور آپ کے چینل پہ بھی بارہا میں نے بھی جب یہ ہم ٹیسٹ شروع کر رہے تھے تو آپ لوگوں نے مجھے لیا تھا لائن پہ۔ امپورٹنٹ چیز یہ ہے اس رینڈم ٹیسٹنگ کوئی 12,000 کا اگر سیمپل ہو اور اس میں ریشو نکل آئے
42%, उसका मतलब ये तो नहीं है कि 6,70,000 कंफर्म केसेस मौजूद हैं यहाँ पे। मतलब ये है कि अगर प्रिकॉशनरी मेजर्स फॉलो ना की गई, जैसे डॉक्टर जावेद अकरम साहब अभी फरमा रहे थे, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ऐसा होना पॉसिबल है, लेकिन अगर नहीं हुआ तो हम तेजी से कहीं उस तरफ तो नहीं जा रहे। क्या हम इस नंबर को एक्चुअल में कन्वर्ट करने तो नहीं जा रहे? जब हम SOPs को फॉलो नहीं करेंगे, हम मास्क नहीं पहनेंगे। ठीक है, आप कैटेगोरिकली इसको डिनाई कर रही हैं कि ऐसा नहीं है, आप कह रही हैं कि ये समरी दुरुस्त नहीं है, ये अंदाजे हैं, आप ये कह रही हैं। मैं ये अंदाजों पे मबनी मैं आपको बताती हूँ, जो कैबिनेट कमेटी ऑन कोरोना है हमारी, उस पे डेली बेसिस पे अजम्पशन बेस्ड बातें होती है। मसलन जब ये कोरोना पाकिस्तान में अभी आया भी नहीं था, इनिशियली जो टाइम लाइन्स बताई गई थी कि हमारी हाइप कब आएगी, वो इनिशियल मंथ थे कि 1 महीने के अंदर इतने केसेस हो सकते हैं, लेकिन लकीली वो हुए नहीं। जैसे अगर हम कंपेयर करें विद स्पेन, विद अदर कंट्रीज, जहाँ पे इटली, जहाँ पे बहुत तेजी से स्प्रेड हुई, लेकिन क्या उस टाइम लाइन के अंदर पाकिस्तान में उतने केसेस हुए? इसका जवाब है नहीं। वो हाइप पाकिस्तान में अभी तक नहीं आई। लेकिन अगर हम आज कमी को ताही करेंगे, अगर हम अपनी एहतियाती तदाबीर को फॉलो नहीं करेंगे, कोरोना इज रियलिटी। मुसर्रत साहब साथ ही रहिएगा। डॉक्टर जावेद अकरम साहब भी हमारे साथ ही हैं, एक बार फिर उनकी तरफ जाते हैं। डॉक्टर साहब, आपने ज़ाहिर है जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो सुन लिया मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा का, हुकूमत पंजाब को रिप्रेजेंट कर रही हैं। वो कह रही हैं कि ज़ाहिर है ये एक अंदाजे हैं, तो अंदाज़ों की बुनियाद पर अगर फैसले किए जाएँ तो फिर तो प्राइम मिनिस्टर ने सही फैसले किए हैं कि सयाहत भी खोल दो, सब खोल दो। मैं अपनी बहन के बिल्कुल मुत्तफिक हूँ 100%, और हमेशा मुत्तफिक रहा हूँ, क्योंकि वो हमेशा सही बात करती है। तो मैं, चाहे वो पंजाब गवर्नमेंट के बिहाफ पे करें, चाहे वो लोगों के बिहाफ पे, चाहे मरीजों की राइट्स की बात करें, तो मैं यहाँ ये आपको बताना चाह रहा हूँ, इसमें ऐड करना चाह रहा हूँ जो उसमें मुसर्रत ने कहा कि इस समरी को मैंने नहीं देखा, लेकिन जो इसका मैंने एक हिस्सा देखा है वो बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी है। अब मेरी गुजारिश होगी, मैंने इसके बाद फ़ोन भी करना था अपनी बहन को, लेकिन अच्छा है कि इसके थ्रू आपके बात हो गई कि इसमें लिखा हुआ है कि ये समरी में कि ये रैंडमाइज टारगेटेड सैम्पलिंग है। अब देखें, ये दो मुख्तलिफ अल्फाज हैं। रैंडमाइजेशन का एक प्रोसीजर है कि वो कंप्यूटर जनरेटेड रैंडमाइजेशन है, मैनुअल रैंडमाइजेशन है। किस तरह हम कहते हैं कि ये नुमाइंदा सैंपल है ऑफ पॉपुलेशन, उसको हम कहते हैं कि ये रैंडमाइज है। तो उसका एक वाज़िया तरीकाकार है। हम रोज अपनी यूनिवर्सिटी में रैंडमाइजेशन करते हैं, मुख्तलिफ फार्मूले से, पीटर्स फार्मूला है, 5-6 फार्मूलाज हैं, तो वो बताया जाए कि वो फार्मूला कौन सा था। और टारगेटेड एग्जैक्टली उसके ऑपोजिट है। एक ही समरी में ये दो मुख्तलिफ लफ्ज लिखे गए हैं। इसका खुदारा इस समरी को हमें भेजा। डॉक्टर साहब साथ ही रही ना, पूछ लेते हैं मुसर्रत साहिबा से। मुसर्रत साहिबा फरमाइएगा, ये कौन सी सैम्पलिंग, स्मार्ट सैम्पलिंग कह रहे हैं आप इसको, जो ये कराई गई है? बेसिकली इसमें तो जो जावेद भाई ने, डॉक्टर साहब ने जो बात की है वो बिल्कुल 100% ठीक की है। उसकी वजह यह है कि देखें, इस तरह की गैर जिम्मेदारी का सबूत इस लेवल पे हो जाना बड़ी अजीब सी बात है। अजीब इसलिए मैं कह रही हूँ कि देखें, एक तो ये कि ये खबर जब फैलाई गई और जब तमाम चैनल ये आज की इमीडिएट की, अभी हम बात इस पे नहीं करें, कल की खबर है ये, यस्टरडे की, कि 6,70,000 कंफर्म केसेस आ गए, तो इसमें चाहिए था कि जिन लोगों ने ये समरी जिस पैराए में भी तैयार की थी वो फौरन आते और उसमें जो एक्चुअल चीज थी वो शेयर करते, जो कि मैं और डॉक्टर साहब अभी आपसे कर रहे हैं। इम्पोर्टेंट चीज ये है, बेसिकली ये एक रैंडम सैम्पलिंग थी, जिसमें मैं आपको बता देती हूँ कि इन्होंने डिसाइड क्या किया था, चूंकि ये मेरे भी नॉलेज में है। इन्होंने जैसे गवाला हो गया, वो बहुत ज्यादा एक्सपोज होते हैं, लोग रोज फिर रहे थे, फ्रूट मंडियों से सैंपल लिए, इन्होंने मार्केट से सैंपल लिए, इन्होंने जो पैरामेडिक स्टाफ था उनके भी इसमें सैंपल मौजूद हैं, जो हाईली एक्सपोज लोग थे। इसमें वो एरियाज भी थे जहाँ पे कोविड-19 के पेशेंट मौजूद थे, उन इलाकों के गिरदोनवा से भी सैंपल लिए गए। उसकी जो परसेंटेज निकली वो निकली, जब टोटल इन्होंने सैंपल फर्ज करे 12,000 समथिंग का फिगर मैंने देखा, उसमें से जो परसेंटेज आई दैट इज 5.42%। अब उस परसेंटेज को अंदाजे लगा के आप ये कह दें कि जी इतने हो सकते हैं, भाई उसमें इम्पोर्टेंट चीज ये है कि ये कंफर्म्ड केसेस नहीं है। अब कंफ्यूजन ये हुई, लोगों ने कहा कि शायद इतने पेशेंट मौजूद है। मुसर्रत साहिबा साथ ही रहेगा। टेक्निकल ग्रुप के अहम रुकन डॉक्टर असद असलम साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। सर, आपके वक्त का भी बहुत शुक्रिया। आप बताइएगा कि इस रिपोर्ट में क्या अहम नुकात है? देखिए, इसमें एक रिपोर्ट में एक बड़ा लफ्ज़ वादे लिखा हुआ है कि इट शोज लोकल डिसेमिनेशन। पहले शुरू में हमारे पास थी कि ये बाहर से डिजीज आई है, लोग लेके आए हैं, लोग खुद ही एक दूसरे को फैला रहे हैं। ये सारा
अगेन एक ही लफ्ज बार बार आता है, एहतियात एहतियात। कोई इस तरफ अपने कान धरता ही नहीं है। अब ये तो हो नहीं सकता कि हम रोजाना उन पेशेंट की फोटो दिखाना शुरू कर दें जो दोज हु आर डाइंग बिकॉज ऑफ द डिजीज, और लोग रियलाइज नहीं करते कि उनको कि अगर उनको बीमारी के सिम्टम नहीं है और खुदा न खास्ता वो सिम्टम आ गए और डिजीज सीवियर होगी तो उनके साथ या उनके रिश्तेदारों के साथ क्या हो सकता है। हमारे पास अभी तक जो फर्टिलिटी रेट है वो जी 2.6% है। या हमारे लाहौर में जो हमारे पास जितनी डेली हम स्टेटिस्टिक इकट्ठे करते हैं, अभी तक लाहौर में देखें जी टोटल इस वक्त जो अभी तक आज की तारीख तक डेथ हुई हैं पूरे लाहौर में वो 156 है। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो इस वक्त हम फेस कर रहे हैं कि लोग 5-5, 6-6 दिन घरों में गुजारते हैं बाहर के साथ, नजले के साथ, क्योंकि होम आइसोलेशन की इजाजत है। 5-6 दिन घरों में गुजारते हैं और जब उनकी डिजीज स्टेज पर पहुंच जाती है कि दोनों लंग मुतासर होते हैं, सांस उखड़ना शुरू होता है और फिर वो रिपोर्ट करते हैं। हम लोगों से बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि जो भी साइन सिम्टम शुरू फौरन आप रिपोर्ट कर दें हॉस्पिटल को, लेकिन वो नहीं करते। ठीक है, डॉक्टर साहब साथ ही रहेगा। डॉक्टर जावेद अकरम साहब, सर अवाम अभी भी कंफ्यूज है, समझ नहीं आ रहा वो समरी पर भरोसा करें, वो हुकूमत पंजाब पर भरोसा करें, कंफ्यूजन है। और इसी कंफ्यूजन के दौरान ही हमने देखा कि MBBS के इम्तिहानात जो हैं वो भी मुलतवी हो गए। वो किस रिपोर्ट की बुनियाद पे हुए, फिर फैसले कैसे करें डॉक्टर साहब? जो मेरी पहली चीज़ है कि मैं इसमें एक जो मुसरत बहन ने और मेरे भाई असद ने बात की, बिल्कुल सही की। इसका सिर्फ इस जो भी ये समरी है या जो भी है जो उन्होंने मुझे एक्सप्लेन किया मुसरत ने और जो असद ने भी एक्सप्लेन किया कि ये टारगेटेड सैम्पलिंग थी, जिसको हम रैंडमाइजेशन नहीं कह सकते। रैंडमाइजेशन होगी कि आप मस्जिद को सेंटर पॉइंट लें, हर तीसरे घर में जाएं। कोई टारगेट नहीं आपने किया किसी ग्रुप को, कोई वल्नरेबल ग्रुप्स को नहीं टारगेट किया। तो वल्नरेबल ग्रुप्स को अगर टारगेट करेंगे तो ये जाहिर है आपको हायर प्रेवलेंस देगा, बहुत ज़्यादा फॉल्स हाई। तो इसलिए मेरी ये गुजारिश है कि इसको दोबारा एक दफ़ा एवेल्युएट करा लिया जाए। कोई हर्ज नहीं है, अच्छी स्टडी है और इसमें से अच्छी चीज़ें निकल आ सकती हैं। और लेकिन एंड रिजल्ट तो वही है जो असद कह रहा है, असद असलम जो कह रहा है बिल्कुल सही कह रहा है। जहाँ तक देखें इम्तिहानों का तल्लुक है, इम्तिहानों में मसला ये था कि ये हमने तमाम यूनिवर्सिटीज़ ने, किंग एडवर्ड, FJ, UHS पंजाब में और फेडरल यूनिवर्सिटी AJK ने एक मीटिंग की थी तमाम वाइस चांसलर की अंडर द डायरेक्शन ऑफ हायर एजुकेशन कमीशन। और हमने ये हमें पता है, जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब ने 100% सही कहा है कि ये नहीं कह सकते ये कब जाएंगी। WHO अब ये कहती है कि ये एपिडेमिक नहीं रह गई, ये एंडेमिक हो गई है। एंडेमिक मीन ये टाइफाइड मलेरिया की तरह आपकी और हमारी जिंदगी में रहने वाली है। तो इसलिए हम क्या हर चीज़ कर सकते हैं, हम आइसक्रीमें खिला सकते हैं, हम जाके बीडन रोड पे पिकनिक मना सकते हैं, बच्चे की जूती खरीदने के लिए 5 जाने ले सकते हैं। तो एजुकेशन की ही कुर्बानी हमने करनी है कि लोगों का साल ज़ाया हो, खुदा न खास्ता उनको फीसें बाद में दोबारा देनी पड़े। तो एक अटेम्प्ट ज़रूर थी हमारी, और वो अटेम्प्ट में हमने ये किया था कि जिनको कोरोना है, जिनकी कॉन्टेक्ट की हिस्ट्री है, जिनका पॉजिटिव है, जिनकी मदर में है, और जो नहीं देना चाहते, जो अब्रॉड हैं, जो ट्रेवल नहीं कर सकते, उनको एग्जम्प्ट कर दिया था कि उनका बाद में ले लेंगे। और ये स्टूडेंट्स की डिमांड पे हुआ था, वो गवर्नर साहब को मिले थे कि हमारा बहुत वक्त ज़ाया हो रहा है, इसका खुदारा कुछ करें। तो वो हमने की, लेकिन गवर्नमेंट ने मुनासिब समझा, एक पेपर अभी ले लिया हमने। और जो SOPs वहाँ फॉलो हुए थे, मैं खुद खड़ा रहा हूँ 5 घंटे, वो अगर सारी जिंदगी में आप फॉलो कर लें तो ये ट्रांसमिशन आज के बाद रुक जाएगी। आप देख लें, वो फोटोज आपके कैमरे ने महफूज की हुई हैं, वो आप दिखा दें लोगों को कि ये होती है। ज़ाहिर है डॉक्टर्स जो बनने जा रहे हैं उनसे बेहतर SOPs पर कौन अमल कर सकता है। ये अलग बात है कि वो इस वक्त खुद मुश्किलात का शिकार हैं। बहरहाल डॉक्टर जावेद अकरम साहब, डॉक्टर असद असलम और हुकूमत पंजाब के तर्जुमान मुसरत जमशेद चीमा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। आप तीनों का बहुत शुक्रिया।